सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। Two types of banks are there. Although there are so many types of bank, regional, rural banks, commercial banks, central bank, so many types of bank, village banks, small scale, cooperative banks. But in our syllabus, commercial banks and central banks, these two banks are there. Commercial banks who deals directly with public. Central bank who controls, who governs, who guides, supervise all the commercial banks. So relation जो पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है वही रिलेशन कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के साथ होता है। पब्लिक का डायरेक्टली सेंट्रल बैंक से कोई कंसर्न नहीं होता, इसलिए जितनी भी कभी फोन कॉल्स आती हैं हम आरबीआई से बोल रहे हैं और आरबीआई में आपको अकाउंट को ये कर दिया है वो कर दिया है, मतलब वो फ्रॉड कॉल्स है। आरबीआई का कोई भी ऑफिशियल कभी भी जनरल पब्लिक को कॉल नहीं करता, नेवर, because RBI, Reserve Bank of India, is the central bank of our country, and central bank do not deal directly with the public. Fine. What is the relationship between commercial bank and public? Commercial banks provides loan and accept deposits. Commercial banks accept deposits from the public and provides loans to the public. They work for profit motive. Okay, these two are the main functions of commercial banks. Apart from it, bank overdraft facility, locker facility, housing loan and various types of facilities are there which commercial banks provide. But for our purpose, we need to know that commercial banks have two functions: accepting deposits and providing loans. That's it. Okay. And commercial banks keep their excess money with central bank, and in case of emergency, central bank provides loan to commercial banks. So the same relationship exists. Okay. Now, when we studied about money supply, तो हमने क्या कहा? Who are the suppliers of money? Who are the producers of money? Three. One, government. Second, commercial bank. Third, central bank. Government of India क्या provide कर रही है? 1 rupee, paper currency and all coins. Commercial banks do money supply with the help of credit creation, money creation, जो प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में किया था. और थर्ड, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स ऑल द पेपर करेंसी नोट्स. ओके, ये होता है पेपर करेंसी नोट्स. तो अब पहले तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन लिख लो, राइट डाउन. अ कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. A commercial bank is a financial institution which accepts deposits. Which accepts deposits from the general public and extends loans for investment with the aim of earning profits. जो डिपॉजिट्स वो देते हैं वो हमारे पास एक तो टाइम डिपॉजिट्स हैं. टाइम डिपॉजिट्स मतलब जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं एक फिक्स टर्म के लिए, ठीक है. एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स. ये नॉलेज के लिए ही है, ये एग्जाम में बहुत रेयर पूछते हैं, बट हाँ पूछ भी सकते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस है.
बट हमें डिटेल में नहीं करना, सिर्फ इतना है कि टाइम डिपॉजिट्स के जो टर्म है दैट इज फॉर अ फिक्स टर्म, 60 days, 90 days, 2 years, 5 years, 10 years. A fixed tenure is there. That is time deposits. Demand deposits whenever deposit holder demands. जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, तो वो हमारा whenever person demands, जब भी चाहे वो निकाल सकता है, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं. ठीक है. एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट्स. Recurring deposits. Recurring deposits means नहीं, बार बार तो तुम बेटा ये भी निकाल सकते हो, डिमांड डिपॉजिट्स भी. रिकरिंग डिपॉजिट्स में होता है कि आपका एक अमाउंट फिक्स होता है, जैसे कि ये इन दोनों के बीच की चीज होती है. जैसे कि एक 500 रुपीज का अमाउंट है, आपने वो रिकरिंग ओपन कराया और वो आपने 1 ईयर के लिए ओपन कराया, तो एवरी मंथ आप 500 या उससे कुछ ज्यादा, एक लिमिट होती है हर बैंक की, उतना अमाउंट आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हो एवरी मंथ. SIP के जैसे भी कह सकते हो, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली SIP. और 12 महीने के बाद वो पूरा एक मैच्योर हो जाएगा और वो आपके अकाउंट में सेविंग में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से 3 तरह के हमारे पास डिपॉजिट्स बैंक एक्सेप्ट करता है. अब आज के जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, ऑल्दो उसमें और भी बहुत तरह के डिपॉजिट्स हो रहे हैं, जैसे कि लोन्स भी बहुत तरह के होते हैं. एजुकेशन लोन है, कार लोन है, कोई भी व्हीकल लोन है, हाउसिंग लोन है, फर्नीचर लोन है, वेरियस पर्सनल लोन, वेरियस टाइप्स ऑफ लोन है. हर लोन की अपनी अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको डीप में हमें नहीं जाना है. ठीक है. मनी क्रिएशन मैंने आपको कल बताया था कि मनी क्रिएशन में हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट्स होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं और उसके थ्रू मनी क्रिएशन करते हैं. तो आज मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर कमर्शियल बैंकिंग. हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें डिटेल में जो करना है वो करना है सेंट्रल बैंक. सो राइट डाउन, ये टेबल बना लो बस. सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन. Central Bank is the apex monetary institution of a country who organizes, supervises, regulates, and develops monetary and banking system in a country. System in a country. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हर कंट्री में ना एक ही सेंट्रल बैंक होता है. विच वॉज एस्टैब्लिश्ड, बॉक्स में रखा है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड in 1935. In 1935 as a shareholders bank. As a shareholders bank and nationalized on and
नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, अब एक चार्ट बनाएंगे फंक्शंस का। लास्ट वाला फंक्शन मैंने लिखा है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। चलो अब देखो, सेंट्रल बैंक, हर कंट्री में एक ही बैंक है, तो सेंट्रल बैंक के ऊपर, बेचारे के ऊपर बहुत बोझ है। ठीक है, क्या है वो बोझ, क्या क्या काम करते हैं? सबसे बड़ा काम इशू ऑफ करेंसी, बैंक ऑफ इशू करेंसी। हम चाहे ये कहते हैं कि 1 रुपए की पेपर करेंसी एंड कॉइन्स गवर्नमेंट बैंक कर रहा है, क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक कर रहा है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जो मेजर करेंसी है, वो तो सेंट्रल बैंक ही इशू कर रहा है। और हर कंट्री में सेंट्रल बैंक ही करता है, हर कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होगा और वही सेंट्रल बैंक इशू करेगा हमेशा मेजर सारी करेंसी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि सेंट्रल बैंक के पास ही ये राइट है और सेंट्रल बैंक को ही ये काम करना पड़ता है? क्यों नहीं कमर्शियल बैंक्स को बांट देते कि 50 का तुम कर दो, 100 का तुम कर दो, 500 का तुम कर दो? ऐसा क्यों? कुछ कमर्शियल बैंक प्राइवेट होते हैं तो लगा सकते हैं। एक तो कमर्शियल बैंक्स के साथ जाने से यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, हर बैंक अपने हिसाब से करेगा और कंट्रोल खत्म हो जाएगा। मार्केट में कितनी मनी सप्लाई रखनी है वो वहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स डू वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव एंड सेंट्रल बैंक डू नॉट वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो पहली बात यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगी। अभी जो यूनिफॉर्मिटी है, सारे नोट्स एक से हैं, सब पे सेम पिक्चर्स आ रही हैं, फिर पता लगेगा किसी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हो गए तो किसी के शाहरुख खान जी हो गए, किसी के को पिंक कलर पसंद है तो नहीं जी हमें तो ग्रीन कलर पसंद है। मीन्स वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल में रखने के लिए, they have to maintain a sole authority of issuing currency, जिससे कि मनी सप्लाई पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। बैंक्स शुड नॉट यूज दिस पावर फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। ठीक है, तो ये होता है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। 200 करोड़ का रिजर्व हमारे पास रखना जरूरी है, आउट ऑफ विच 115 करोड़ इज गोल्ड एंड 85 करोड़ इज फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। ठीक है, ये टू माई नॉलेज अपडेटेड है, फिर भी मैं एक बार इसको चेक करके बता दूंगी कि अगर कुछ और चेंजेस हुए तो। ठीक है, टू माई नॉलेज अभी तक बुक्स में जो गिवन है वो ये गिवन है। ठीक है, फिर बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, द रिलेशनशिप विच वी हैव विद द कमर्शियल बैंक्स, द सेम रिलेशनशिप इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक, सेम रिलेशनशिप चलता है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट कमर्शियल बैंक्स में होता है, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंक अकाउंट है वो सेंट्रल बैंक के पास है। उनके बेसिस पर कोई भी पेमेंट्स करनी है, कोई भी पेमेंट्स रिसीव करनी है, लोन्स देने हैं, लोन्स लेने हैं, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक से फंड रेज करना है, पब्लिक में सिक्योरिटीज इशू करनी है, कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज इशू करनी है, ये सब काम सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर करता है। ठीक है, सो ऑल दीज वर्क एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, प्रोवाइड लोन्स, मेंटेन्स अकाउंट, जो भी अकाउंट्स मेंटेन करने हैं वो ये कर रहे हैं, मेंटेन्स पब्लिक डेप्ट, मेंटेन्स लोन्स एंड एडवांसेस, एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड। इवन गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एज फाइनेंशियल एडवाइजर भी करता है। यहीं पे एक पॉइंट लिख लो नीचे ही, फाइनेंशियल एडवाइजर, उनके लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का काम भी यही करता है। ठीक है, इसीलिए तो डिमोनेटाइजेशन के समय जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे वो नाराज हो गए थे, क्योंकि वैसे तो सेंट्रल बैंक का काम है
कि वो उनसे बात करे, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी जी ने उनसे ज़्यादा कंसल्ट किया नहीं और डिमोनेटाइजेशन कर दिया। तो इस समय थोड़ी जो हुई थी बातें, वो इसीलिए उठी थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो ये सब चीज़ें याद है। तुम तो बहुत छोटे रहे होगे, आज से कितने साल पुरानी बात हो गई, 8-9 साल, 2016 में हुआ था। तब तो तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें समझ ही नहीं होगी। मस्ती करते। तब तो हम मस्ती करते थे, मस्ती तो तुम बेटा अभी भी करते हो। अब कौन सा तुम पढ़ लेते हो, देखा मैंने टेस्ट में क्या हाल किया है। फिर बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स का भी बैंक है। उनका जो भी कैश रिजर्व्स हैं उनके कस्टडी वो अपने पास रखते हैं, कि आपके पास जो भी सरप्लस कैश है वो भी हमारे पास रख सकते हो। एंड व्हेनेवर यू नीड फंड्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब कमर्शियल बैंक के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कौन सा दरवाजा खुला होता है? आरबीआई का। जैसे कि आप लोगों को कभी, जब अभी तो खैर अभी पापा मम्मी पे डिपेंड हो, लेकिन जब कमाने लग जाओगे तब सोचोगे अब तो हम बड़े बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, लेकिन फिर भी जब कोई साथ नहीं देगा तो कौन साथ देता है? पेरेंट्स। तो वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होते हैं। फिर सुनने को पहले मिलती है खाली धक्के सब जगह, अब समझ में आई? तो वही होता ही है, हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, होते हो नहीं तुम। तो कहानी ये है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कैसे है, जैसे कि हम बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास होते हैं, हम बैंक से डिस्काउंट कराते हैं, उसके बदले में लोन ले लेते हैं। ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स भी उन बिल्स को रीडिस्काउंट करवा लेते हैं सेंट्रल बैंक से। दिस इज वन वे। Any type of loan which commercial banks requires for any purpose, that is also provided by central bank. ये भी एक है। तो whenever they need, they provide loans. Then clearing house function. Clearing house function क्या होता है? जैसे कि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तुम्हारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अब मैंने एक चेक काट के दिया, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेकिन इसको तो एसबीआई में पैसा चाहिए, तो क्या होगा? मैं अपने बैंक में चेक दूंगी, ये अपने बैंक में डिपॉजिट कराएगी। फिर क्या होगा? वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा, वहां से स्क्रूटनी होगी कि ऐसे कौन से चेक्स हैं जो इस रिस्पेक्टिव बैंक के हैं। बीओबी के चेक मेरे बैंक के पास जाएंगे, मेरा बैंक फंड रिलीज करेगा और वो फंड इसके पास जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसे हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समझे? पहले तो ये बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में होते थे, मतलब चेक्स जो है ना फिजिकल फॉर्म में जाया करते थे। तो जनरली अगर दो अलग अलग अकाउंट्स बैंक्स में अकाउंट है दो लोगों का, तो वो 4 to 5 डेज लिया करता था चेक को क्लियर करने में। लेकिन अब थोड़ा टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिजिकल फॉर्म की जगह स्कैन्ड कॉपीज जाने लगी हैं, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो गया है, सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं, तो ये 2 to 3 डेज में होने लगा है। पहले 4 to 5 डेज लग जाया करते थे। बट क्लियरिंग हाउस फंक्शन मेन सेंट्रल बैंक ही करता है, ठीक है? तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन हो गया। ये भी कमर्शियल बैंक्स के लिए सेंट्रल बैंक ही करता है, और ये इसलिए करता है सो दैट दे कैन कंट्रोल ऑल द मनी फ्लोज। बैंक आपस में मिलजुल के कुछ घपलाबाजी ना कर लें, इसलिए, ठीक है? देन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब हुआ कि जो भी हमारा मार्केट में इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी प्रेशर्स चल रहे हैं, उन प्रेशर्स को कंट्रोल करने के लिए दे डू सम एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। क्वांटिटेटिव मतलब एप्लीकेबल टू ऑल बैंक्स एंड क्वालिटेटिव टू अ स्पेसिफिक बैंक। ये एक स्पेसिफिक बैंक के लिए होती हैं। तो ये सब वो सब तरीके हैं जिनके थ्रू वो किसी भी इकोनॉमी का इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी प्रेशर कंट्रोल करते हैं। ये हमें डिटेल में भी करने हैं, ये पूरा एक चैप्टर है। सेंट्रल बैंक में तो सिर्फ इनके नाम दे दिए, जब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कर रहे हैं तो सिर्फ इनके नाम दे दिए, लेकिन ये पूरा एक चैप्टर है। जब हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आता है
उस वाले यूनिट का लास्ट चैप्टर ये पूरा डिटेल में है। फिर तो हम इसको अभी ही डिटेल में कर लेंगे और तब फिर रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हम सिर्फ फंक्शंस में कर रहे हैं नाम। फिर कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी है उसका मेन कस्टोडियन सेंट्रल बैंक होता है, फिर वहां से वो कमर्शियल बैंक को रिलीज करते हैं। कोई भी कमर्शियल बैंक डायरेक्ट अपने पास रिजर्व नहीं रख सकते, ऐसे उनको सेंट्रल बैंक के थ्रू ही वो रिजर्व रखने होंगे। एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब हुआ कि जो भी एक्सचेंज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो हम कहते हैं ना डॉलर का प्राइस कम ज्यादा, इस पे कंट्रोल करना कि ये अननेसेसरी इतना ज्यादा भी ना हो इतना कम भी ना हो, इस पे कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, दैट इज ऑल्सो डन बाय सेंट्रल बैंक। ये सब ना आपको भी एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पूरा एक चैप्टर है मैक्रो का लास्ट, जब वो करोगे तो ये वाला फंक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तो इतना समझ लो कि एनी फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, दैट्स इट। देन कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, हर तरह का डेटा जो भी फाइनेंशियल डेटा है, बैंकिंग हैबिट से लेकर हमारा लोन्स की हैबिट क्या चल रही है, एवरी टाइप ऑफ बैंकिंग रिलेटेड डेटा, ये सारा कलेक्शन का पूरा डिपार्टमेंट, रेगुलर उनकी पब्लिकेशन, ऑल रिलेटेड टू फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज ऑल डन बाय सेंट्रल बैंक RBI, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है वैसे तो, बट अभी आप लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसका असाइनमेंट जितना सॉल्व करके ला सकते हैं लाएंगे। अभी हम इस चैप्टर को एक क्लास और देंगे, ठीक है। तो अभी से नोट कर लो, आज फ्राइडे है, मंडे आप लोगों का नेशनल इनकम विद थ्योरी का टेस्ट है, वेडनेसडे हम लोग इसका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और जो भी मुझे और लग रहा है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी अगर मुझे लगेगा तो। और फिर फ्राइडे की क्लास में आप लोगों का मनी एंड बैंकिंग का टेस्ट होगा। कभी भी कोई चैप्टर जब खत्म होगा तो हम उस चैप्टर के टेस्ट के बिना अगले चैप्टर पे स्विच नहीं करेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। काम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, आप अपने काम को पाइल्ड अप रखेंगे तो आपके लिए आगे दिक्कतें ही आएंगी। तो कोशिश करो काम पाइल्ड अप ना करें। 3 दिन की छुट्टी मिली है स्कूल से, तो इसको घूमने फिरने और सोने और गेमिंग की बजाय पढ़ने में लगा दो। 12th क्लास है, सब जो कहते हैं वही मैं भी कह रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है, तो ये काम खत्म कर लो, ठीक है। चलो नमस्ते। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.